Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, children. We were on civics chapter, right? Yes, ma'am. Ha. So give me a minute. I'll be sharing the screen with you. Okay. Can you all see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Tell me where, which particular topic we were on. Yes, class. Nobody knows. Ma'am, Yes. election. We were on Ah, elections. Which elections? We are doing elections chapter only, beta. I want to know which particular topic we had stopped. Ma'am, we did nominations. Okay, nominations we have completed. yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. Okay. Anything in nominations that I need to explain to you? Yes, ma'am. Please explain what is nomination of candidate. Okay. Vibhanshu, are you there? Yes, ma'am. Can you tell what is nomination of candidates? Ma'am, I also wanted to know. Okay, fine, fine. So that means we have not completed this part. We were about to start, right? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, then it is fine. I hope whatever we have done till now, like the constituencies part, when the elections are declared, how the whole country is divided into various constituencies, then the voters list. Is it clear or not? Voters list. Yes, ma'am. Chalo, before I start explaining it to you, let us read. Good morning, ma'am. Good morning, Harsh. Chaliye, I hope the screen is clear to you all. Yes, Yes, ma'am. चलिए तो आप एनी वन ऑफ यू विभांशु चाहे तो आप पढ़ लीजिए ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स पढ़िए देन आई विल एक्सप्लेन ओके Okay, ma'am. Nomination candidates. We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. There are some other restrictions on criminals, etc. But these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of serious criminal cases pending against the candidate,
details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family, and educational qualifications of the candidate. This information has to be made public. This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. Read this educational qualifications for the candidate also. Okay. Educational qualifications for candidates. Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? Educational qualifications are not relevant to all kinds of jobs. The relevant qualification for selection to the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degrees but the availability to play cricket well. Similarly, relevant qualification for being an MLA or an MP is the ability to understand people's concerns, problems, and to represent their interests. Whether they can do so or not is examined by lakhs of examiners, their voters, after every 5 years. Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to the educational qualifications. In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest elections. If, for example, a graduate degree like BA, BCom, or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest elections. Fine. I'm done. This much only, right? Now, see, nomination of candidate means, suppose I am the citizen of the country, and I wish to, contest elections. So I can be a voter also, I can be a candidate for contesting elections also. Nomination of candidates here means that when a person wishes to contest elections, then that person has to go to the election commission, get his or her name registered over there, fill the papers, nomination papers. Okay? This much is clear? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. नॉमिनेट करना मतलब कि हम अपने आप को नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, ठीक है, चाहे वो एमपी के हो चाहे वो एमएलए के हो, लोकसभा या राज्यसभा, सॉरी लोकसभा या फिर आपका विधानसभा, हम एज अ कैंडिडेट दोनों में से कहीं के भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि जो है कोई भी इंसान जो डेमोक्रेटिक कंट्री को बिलोंग करता है, जहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, राइट, वहां पे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। पर जैसे हमारे कंट्री में ये सिस्टम प्रोवाइडेड है हम लोगों को कि हम में से कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक जो है इलेक्शन लड़ सकता है, बट उसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स करा गया है ना। किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए हमेशा कुछ कंडीशंस डाली जाती है। ठीक है, उन कंडीशंस में एक कंडीशन ये है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ एज अ कैंडिडेट, तो मेरी उम्र जो है, माई एज should be 25 years. Just a moment, just a moment. हाँ जी, जैसे अगर मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ इलेक्शंस,
तो उसके लिए मेरे को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। जैसे जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमारा जो हमें उस स्कूल की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप में से जितने भी यहाँ पे हैं क्लास में, आप मुझे बताओ अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन लेना है किसी भी स्कूल में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया जो है रिक्वायर्ड होता है? कैन एनीबडी टेल? Ma'am, we have to give a test. ठीक है, Ma'am, transfer certificate. ठीक है। कहाँ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट? मैम Old दूसरे school. स्कूल का। ओके, प्रीवियस स्कूल का, ठीक है। और मैम और एज। Ma'am, एज। we have to pass the test. Quali- नहीं, उसके अलावा क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एज। क्राइटेरिया होता है बेटा, एज। 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 वेरी गुड, एज। Age, एज age. वन सच क्राइटेरिया, ठीक है। देखो, अगर क्लास 1 में मुझे एडमिशन लेना है तो एज पर द नॉर्म्स, जो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस हैं, सीबीएसई के जो रूल्स हैं, एज पर द रूल्स मेरी उम्र जो है 5 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यदि मैं 5 साल से नीचे हूं तो मुझे क्लास 1 में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे आपने कहा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो अलग बात है कि पहले के टाइम में, मतलब अब तो खैर सीबीएसई ने भी इस चीज को जो है वो कर दिया है, अप्रूव कर दिया है कि जो नर्सरी वगैरह मैंडेटरी हो गई है। पहले सीबीएसई में नर्सरी को नहीं कंसिडर किया जाता था। आप देखो जितने भी हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट केंद्रीय विद्यालय या आपका जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या जो भी ऐसे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वहां पे केंद्रीय विद्यालय जो हैं वहां पे केजी वगैरह नहीं होता है, वहां पे सीधा क्लास 1 से क्लासेस शुरू होती है। वहां पे किंडरगार्टन का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। अब किंडरगार्टन का प्रोविजन भी रख दिया गया है सीबीएसई स्कूल्स में, बट पहले केंद्रीय विद्यालय जो हुआ करते थे उनमें किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सीधे बच्चा क्लास 1 में आता था और उसकी उम्र 5 साल जो है या उससे ऊपर हो सकती थी। 5 साल से नीचे वाले बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा ऐसा ये नॉर्म है कि भाई बिलो 5 इयर्स का बच्चा जो है वो क्लास 1 के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही अगर हमें कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो हमारी एज जो है वो 25 इयर्स होनी चाहिए। पर एक वोटर बनने के लिए हमारी एज का क्राइटेरिया क्या है? 18 इयर्स, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आई आप लोगों को? Yes, ma'am. रंजय, यस मैम। ठीक है। अब ये दो चीज समझ में आई। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी इंसान जो एक कंट्री का नागरिक है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, भले ही वो किसी पार्टी को बिलोंग करता हो चाहे ना करता हो। बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, अपने आप को किसी पार्टी से एसोसिएटेड करवा लेते हैं, अपने आप को किसी पार्टी का पार्ट बना लेते हैं और फिर उस पार्टी के बिहाफ से, उस पार्टी के थ्रू इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं। पर कई बार आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी एक लाइन होती है जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, उसमें कहते हैं भाई सो एंड सो फ्रॉम बीजेपी, सो एंड सो फ्रॉम कांग्रेस, सो एंड सो फ्रॉम सम अदर पार्टी, सो एंड सो फ्रॉम सम अदर पार्टी, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब पढ़ा होगा ना आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम भी, नंबर वो पढ़ा होगा ये नाम, कुछ ध्यान है आप लोगों को? व्हाट? Ma'am. अरे भाई, जब आपने इलेक्शंस के रिजल्ट देखे होंगे कभी न्यूज में, तो उसमें आपने देखा होगा एक एक जो कॉलम्स बने होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी कॉलम होता है, Yes, निर्दलीय। ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जिसको हम बोलते हैं निर्दलीय, हिंदी में बोलते हैं निर्दलीय या निर्दलीय, निर्दलीय. निर्दलीय, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि भाई मैं किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं होऊंगा, मैं इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन लड़ूंगा, बिना किसी दल के सहयोग के लड़ूंगा। निर्दलीय का मतलब होता है किसी भी पार्टी का पार्ट ना होना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट ना होना। बट कंडीशन ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो जब आप अगर आप चुने जाते हैं, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, अगर आप इलेक्शन में चुन लिए जाते हैं, तो आपको या तो कोई पार्टी बनानी होती है या फिर किसी पार्टी से एसोसिएटेड होना पड़ता है, ठीक है। ठीक है बेटा, Okay. ठीक है। अब जब हम अगर हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड होके जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा नाम जो है नॉमिनेशन पेपर पे आ जाएगा और हमारी पार्टी का नाम भी नॉमिनेशन पेपर पे आ जाए। नुमान, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी लवलीश कर रहा था, अभी आप कर रहे हैं। स्टॉप प्लेइंग लाइक दिस। वी Ma'am, डोंट by mistake, I clicked. वी डोंट रिक्वायर दीज डॉट्स। तो
वो ये कह रहा है कि जब हम कंटेस्ट करते हैं तो हमें एक यूनिक सिंबल मिलता है। हमें ये पता है कि किसी भी पार्टी का पार्ट होने के लिए हमें लोग कैसे रिकॉग्नाइज करें, कौन कैसे जानेगा कि भाई जो राहुल गांधी हैं वो कौन सी टीम, कौन सी पार्टी के हैं, या नरेंद्र मोदी जो हैं वो कौन सी पार्टी के हैं। उसके लिए हमें एक पार्टी सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है ना। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. जब जब हमारे पास वो पार्टी सिंबल होगा तो कहीं पे भी वो सिंबल बना होगा तो लोग पहचान जाएंगे, अरे ये कांग्रेस का है, अरे ये भाजपा का है, अरे ये तो जो है सपा का है, या ये बीएसपी का है, या सीपीआई का है, या सीपीआईएम का है। तो आपने देखा होगा बहुत गांव देहात में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वहां वहां पे इन पॉलिटिकल जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिंबल्स होते हैं उनको ड्रॉ कर दिया जाता है, ताकि लोग ये रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये किस पार्टी का सिंबल है। उस पार्टी के सिंबल को देख के जब गांव के लोग जब वोट करने जाते हैं तो वो उनके उस सिंबल से के थ्रू जो है कैंडिडेट को पहचानते हैं। वो कैंडिडेट का नाम नहीं जानते क्योंकि पढ़ना लिखना जानते नहीं है वो लोग, तो पर फिर भी उनको वोट का अधिकार है। तो मैम वैसे हर जगह ही करा जाता है। नहीं Ma'am, हाँ बेटा, ma'am, who give these symbols? बेटा इलेक्शन कमीशन देता है ये सिंबल्स, हमने बताया था ना कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो, हाँ वो ये सिंबल्स प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर हम सेग्रीगेट करें तो पॉलिटिकल पार्टीज दो तरीके की होती हैं, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है और एक होती है आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज भी इनको हम बोलते हैं। तो अगर हम देखते हैं ऑन अ लार्ज ग्राउंड, अगर हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में कितने सारी नेशनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हमारे कंट्री में आज की डेट में रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज केवल 7 है। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर हम कहते हैं रीजनल पार्टीज मतलब स्टेट पार्टीज, तो हमारे कंट्री में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं। 750 से ज्यादा रीजनल पार्टीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में हमारे कंट्री में, जो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस इन स्टेट। ठीक है, पर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वो केवल 7 हैं। ठीक है बेटा, कैन यू नेम द रिकॉग्नाइज्ड 7 नेशनल पार्टीज ऑफ द कंट्री? Ma'am, BJP, बीजेपी, वेरी गुड। Congress. BSP, बीएसपी, Congress. Congress, कांग्रेस, Sapa. नहीं, सपा इज नॉट, सपा इज अ रीजनल पार्टी। बताओ, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, और बताओ एनीबडी इन द क्लास हु नोज? Ma'am, Lalu Yadav's party. No, that is again a regional party. Ma'am, I know these three only. See, other than these 3 parties, we have CPI, Communist Party of India, and we have CPIM. CPIM is Communist Party of India, Marxist. Now, मैम and आदित्य ठाकरे की मैम। बेटा वो तो शिवसेना तो आपकी महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी हो गई बच्चे, है ना हर्ष? हम अभी इस पे भी आएंगे। हमें लग रहा है कि आपको आप लोगों को ये क्लियर नहीं है, जबकि हमने बताया भी था जब हमने पहले ये चैप्टर लिया था, तो हमने आपको सब नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा था प्रॉपर्ली, पर आप लोग मुझे मैम जो मैम रीजनल पार्टी होती है वो हम्म, मैम मैम इसके मैम लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। नहीं लड़ती हैं, वो लड़ती हैं पर वो किसी नेशनल पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके लड़ती हैं, क्योंकि उनको लोकसभा के इलेक्शन में वो लड़ सकती हैं, बट उनको क्योंकि दर्जा नहीं दिया गया है ना नेशनल पार्टी का, इसलिए वो नहीं लड़ती हैं। पर जैसे Ma'am, coalition government form करके. कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, वो आपका अलायंस में भी आ सकती है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो याद हो तो जब हमारी ये अभी जब ये इलेक्शंस हुए थे बीजेपी के, जब अरे भाई 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे 2014 में, तो उस टाइम पे कांग्रेस, Yes, ma'am. एसपी, इन सब ने जो है ये सब गठबंधन में आके इन्होंने जो है कंटेस्ट करे थे इलेक्शंस।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो है ये अलायंस में आके जो है कर तो सकते हैं, कंटेस्ट तो कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली नहीं कर पाते हैं। और अगर ये अलायंस में आते हैं और इनकी पार्टी को ज्यादा, इनके पार्टी मेंबर्स को ज्यादा वोट मिलता है, जैसे ना देयर इज अ क्राइटेरिया, जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी कहलाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे अगर कोई पार्टी को जो है उसको लोकसभा में टोटल 6% ऑफ द टोटल वोट्स मिलते हैं, 6% कुल जितने भी वोट्स हैं आपके वो मिलते हैं, प्लस 4 सीट्स, लोकसभा के चुनाव में किसी 4 राज्यों में 4 सीट्स मिलती हैं, तब वो पार्टी जो है आपकी नेशनल पार्टी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? National Party. नेशनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और अगर किसी असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, अगर किसी पार्टी को 6% ऑफ द टोटल वोट्स मिलते हैं और कोई 2 सीट्स मिलती हैं, कितनी सीट्स? कोई 2 सीट्स अगर मिलती हैं, तो वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है, उसको उसका स्टेट पार्टी का जो है दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. दिस मच इज क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हर स्टेट पार्टी Yes, ma'am. हाँ, हर स्टेट पार्टी जो है कंटेस्ट करना चाहती है इलेक्शन, बट बिकॉज दे डोंट गेट सीट्स, इसलिए वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाती है। ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं, बट बहुत लिमिटेड नेशनल पार्टीज हैं, ये हमने आपको बता दिया। हमारे कंट्री में टोटल 7 रिकॉग्नाइज्ड जो है नेशनल पार्टीज हैं, और मोर देन 750 रीजनल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से बहुत सारी तो फेक पार्टीज हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है वो फेक पार्टीज हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? ये पार्टी सिस्टम Yes, क्लियर? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब वो कह रहा है कि जो है कि अब पार्टी का जो सिंबल, अब जैसे हर्ष ने बोला कि मैम ये सब जगह होता है, बेटा ये अब नहीं होता है इतना ज्यादा, क्योंकि पहले के टाइम में इलिटरेसी का परसेंटेज बहुत ज्यादा था गांव देहात में। अब तो फिर भी लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अब तो वो जैसे आपने देखा, आपने हमने पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि जो लोग इलिटरेट थे उनके लिए सिंबल्स यूज करे गए थे, सिंबल्स के थ्रू उनको कन्वे करा गया था कि भाई इस सिंबल का ये मतलब है, उस सिंबल का वो मतलब है। यस मैम। ठीक ऐसे ही इन इंडिया ऑल्सो ये लोगों को ये बताने के लिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा सिंबल है, ये इन सिंबल्स को बना दिया जाता था जगह जगह। आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हो तो कई तरीके के पोस्टर्स होते हैं, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो पार्टी सिंबल्स बने होते हैं, दीवारों पे लगाए होते हैं पोस्टर्स उसके, जो है हाथ के निशान को वोट करके जो है कांग्रेस को जिताओ, और या कमल के फूल को खिलाओ, या इस तरीके के बहुत सारे आपने देखा। मैम इस समय मैम हमारे यहाँ भी लग गए हैं मैम सब। हाँ, लग ओके ठीक है, तो ये ठीक है, तो अब ये सिंबल्स का क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर किसी इंसान को पढ़ना नहीं आता है नाम, तो वो केवल सिंबल देख के जो है उसको वोट कर सकता है। ठीक है, ठीक है क्लास, Yes, ma'am. इतना समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो अब जब कई बार क्या होता है बेटा कि जो पार्टी जो कैंडिडेट मतलब जो महत्वाकांक्षी या जो बहुत एम्बिशियस लोग, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम जो है अपने एरिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम डेफिनेटली जो है इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जीत ही जाएंगे अपने एरिया से, तो वो अपने आप को नॉमिनेट करा देते हैं और उनको एक पार्टी टिकट मिल जाती है। तो पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। ठीक है, ये तो आप, पार्टी टिकट क्या होती है? जब हम किसी पार्टी के सपोर्ट से नॉमिनेशन हमारा होता है, देन इट इज कॉल्ड पार्टी टिकट। हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब न्यूज आती है, जब इलेक्शन के टाइम होते हैं, उस टाइम पे कहते हैं भाई फला फला को जो है उस पार्टी की तरफ से पार्टी टिकट मिल गया, नॉमिनेशन का पार्टी टिकट मिल गया। या भाई पांच पांच कुछ कैंडिडेट्स के नाम बोलते हैं, फिर बोलते हैं भाई इनको जो है सपा की तरफ से जो है पार्टी टिकट मिल गया है, इनको भाजपा की तरफ से पार्टी टिकट मिल गया है, या इनको शिवसेना की तरफ से पार्टी टिकट मिल गया है। तो ये दोनों उसमें होता है, मतलब स्टेट इलेक्शंस जब होते हैं आपकी विधानसभा के, तब भी ये प्रोविजन होता है, और लोकसभा के होते हैं तब भी ये प्रोविजन होता है। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. ठीक है,
धनंजय इतना समझ में आया ना? Yes, ma'am. अभ्युदय इस समय आ रहे हैं क्लास खत्म होने के टाइम पे। चलिए, अच्छा, अब ये फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, एज क्राइटेरिया समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ठीक। ma'am. अगर यस अगर मैम। आपसे अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट ऑफ इलेक्शंस, तो आप उसमें बताओगे सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो होगा आपका, वन शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये नहीं है कि आप किसी और देश के हैं और हमारे कंट्री में आके आप इलेक्शन लड़े, ये ऐसा प्रोविजन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। देन Yes, ma'am. Yes, ma'am. अ मैम पर्सन, एज मैम देन। देन एज क्राइटेरिया इज मस्ट। ठीक है, ये दो चीजें मैंडेटरी होती है। और तीसरी चीज ये कि उस इंसान के नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पता चले कि 10 मर्डर करके रखे हुए हैं, 10 चार्जेस लगे हुए हैं और उसको जो है वो अपने आप को नॉमिनेट करा रहा है एज कैंडिडेट। हालांकि अब तो इलेक्शन कमीशन जो है इतना अवेयर हो गया है, इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि वो पहले से जब जैसे कोई कैंडिडेट नॉमिनेट कराता है अपने आप को, और नॉमिनेशन के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी मतलब डिटेल्स उनको देनी होती है, वो डिटेल्स वगैरह कैंडिडेट की लेके उसके बाद उसको वेरीफाई भी कराता है। ये नहीं है कि भाई आपने जो डिटेल्स दी है वो मान लेता है कि हाँ ऑथेंटिक है, करेक्ट है, अप टू द मार्क है, और वो आपको कहता है ठीक है जाओ भैया लड़ो इलेक्शन। ऐसा नहीं होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि जो कैंडिडेट ने नॉमिनेट कराया अपने आप को, वो कहीं से कहीं जो है उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं उसने बताए नहीं है, तो उस केस में उनकी जो नॉमिनेशन होती है वो कैंसिल भी हो जाती है। ठीक है Yes, ma'am. बेटा, ओके चलिए, मैम। इतना क्लियर हो गया ना? यस Yes, ma'am. मैम। Right. Now, every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. आपने देखा होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। वो एक छोटा सा अमाउंट होता है जस्ट टू एंश्योर कि हाँ भाई ये कैंडिडेट जो है। यस मैम। हाँ मैम ये बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट मैम होता मैम लिया किस लिए जाता है मैम ये सिक्योरिटी ये इसलिए डिपॉजिट? लिया जाता है कि भाई आप जब अपना वो कराओगे, जब आप कैंपेनिंग वगैरह करोगे, इस पैसे का इस्तेमाल करोगे उसमें, है ना? ओके मैम। हाँ ऐसा तो नहीं कि आप जो है आपके पास कुछ पैसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और आप जो है फिर कहो कि लाओ भैया हमें हेल्प करो, फिर आप गुंडों की सहायता लो या आप उन लोगों के से इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ जिनके पास पैसे होते हैं, है ना? भाई ठीक है, यस। हाँ। Yes, ma'am. These dotted lines are the criteria that a person has to give in writing while filling the nomination forms. Serious criminal cases pending against the candidate, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में जो है इनके ऊपर जो है इनको नॉमिनेशन नहीं मिलता है। फिर डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली ऑफ हिज एंड, अच्छा, जो भी कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट करना चाहता है वो उसको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताना पड़ता है कि भाई उसके पास क्या क्या पैसा है, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से उसको मतलब उसका इनकम के क्या सोर्सेज हैं, वो बताना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी स्पेसिफाई किया जाता है। वैसे हमारे कंट्री में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत मैंडेटरी नहीं है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अगर आप देखो, आप हमें बता सकते हो कोई ऐसे मिनिस्टर्स के नाम जो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो फिर भी जो है उनका एक अच्छी मतलब तेजस्वी यादव मैम 9th फेल। हाँ, चलो 9th फेल तो है। Ma'am, Lalu Yadav. नहीं, लालू यादव भी थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं ही बेटा। कोई ऐसा है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो? कोई ऐसा मिनिस्टर आपकी नजर में है, आपको पता है किसी के बारे में जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो फिर भी वो मिनिस्टर बन गया हो, चीफ मिनिस्टर दैट टू ऑफ द स्टेट? मैम वो तो मैम फिर मैम पैसे से बन जाते हैं मैम। नहीं नहीं, देखो बेटा, इलेक्शन में पैसा बिल्कुल नहीं चलता है, हम ये पहले ही बता दें आपको। वो बात अलग है, नो डाउट्स। पहले पहले के टाइम में थोड़े बहुत लूप होल्स हुआ करते थे भाई। पहले के टाइम में क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग विजिलेंस नहीं था, हमारे पास जो है ये इंटरनेट वगैरह नहीं थे, हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो इमीडिएट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, है ना? वो सब चीजें हम मानते हैं, बट पैसे के जोर पे किसी को जिता देना वॉज नॉट पॉसिबल, है ना?
लाइक अभी उस दिन हम पता नहीं कौन सी क्लासेस था, आई वाज डिस्कसिंग, आई वाज टेलिंग देम कि यूपी में ही कोई एक है, मतलब एक बहुत बड़ा फेमस इलाका था, मतलब एक गुंडा था, कोई डाकू था, उसका बड़ा कहर था, मतलब लोग उससे बहुत डरते थे। तो वो जब भी इलेक्शंस होते थे तो जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था इलेक्शंस में। और अब जिस भी पार्टी को वो सपोर्ट करता होगा, उस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए वो जो है हमेशा सपोर्टिव रहता था, और लोगों से कहता था, गांव वालों से कहता था कि भाई आप उसी को वोट देंगे। गन पॉइंट पे रखवा के जो है कहता था नहीं, वोट आप उसी को दीजिए। पहले बैलेट बॉक्सेस चलते थे, तो बैलेट बॉक्स की सीजिंग और ये सब चलती थी भाई, उनको जो है सीज कर लिया जाता था बैलेट बॉक्सेस को, पूरे बैलेट पेपर्स निकाल के, बैलेट पेपर्स, फेक बैलेट पेपर्स डाल दिए जाते थे भाई, क्योंकि कॉपी करना तो इजी होता है, तो वो सब काम होते थे, तो ऐसे केसेस में हो जाता था। बट मैम अब तो ईवीएम है। अब ईवीएम है, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, यस अब मैम। इतना ज्यादा इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन जो है सतर्क हो गया है, इतना एक्टिव हो गया है कि वो बहुत विजिलेंट है हर चीज को लेके। अगर आप इलेक्शन कैंपेन में कोई मिनिस्टर अगर इस तरीके की बात कर रहा है कि भाई हम पैसे देंगे तुमको, तुम आओ हमें वोट दो, तो वो तुरंत जो है उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर वो इलेक्ट हो गया है और इलेक्शन कमीशन को पता चलता है कि इसने जो है बेईमानी करी है जीतने में, या इसने जो है वोटर्स को पैसा खिलाया है, या जो है मैम उसने, कहीं कहीं मैम अभी भी होता है मैम। बेटा होता है, बिल्कुल होता है, हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। बट जो परसेंटेज है, इट हैज एक्चुअली गॉन डाउन। पहले ये बहुत हाई यस परसेंटेज, मैम, यस मैम। अब इसका परसेंटेज बहुत मिनिमम लेवल पे आ गया है। मतलब हम जब स्कूल में थे, या हम जब कॉलेज कर रहे थे, या जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमने खुद एक्सपीरियंस करे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, वेयर पीपल वर गिवन, दे वर ब्राइब्ड इन द सेंस, उनको जैसे ये कहा गया कि भाई आप आओ, आप जो है जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, फला फला लीडर आ रहा है, आप आओ उसको सुनो, तो आपको 50 रुपए मिलेंगे या 100 रुपए मिलेंगे पर पर्सन। भाई अब सिर्फ भीड़ इकट्ठा ही तो करना होती है, भीड़ इकट्ठा करने का मोटिव होता है। और अगर जब भीड़ इकट्ठा हो गई, तो मिनिस्टर अपने आप जो है लीडर, वो उनको जो है वो कर लेगा, इम्प्रेस कर लेगा, इन्फ्लुएंस कर लेगा। और जब इन्फ्लुएंस हो गए, तो अपने आप लोग वोट देंगे। पर भीड़ इकट्ठा करना इज वन ऑफ दी थिंग, क्योंकि हर कोई नहीं जाता है आज की डेट में। आप अगर कहोगे किसी से कि भाई अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के 1-2 घंटा किसी को दे दो, तो नोबडी इज रेडी फॉर दैट। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये मिनिस्टर्स भी, देखो जरूरी नहीं, हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पार्ट। तो हर हर लीडर के साथ भी ये चीज है, हर इंसान के साथ है ये। तो जिन लोगों को कोई लीडर्स अपील कर जाते हैं, उनके लिए तो वो भाई दे आर ऑलवेज अवेलेबल। बट जो लोग उनको अपील नहीं कर पाते हैं, फॉर देम दे डोंट वांट टू स्पेयर इवन अ सेकेंड। तो ऐसे केसेस में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ब्राइबिंग भी चलती है, लोग वोटर्स को जो है लालच भी दिया जाता है। जैसे गांव देहात में लीकर्स वगैरह, दारू का बहुत ज्यादा चलन है। लोग जो है दारू पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गांव देहात में पहले के टाइम में, या और आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया कम्प्लीटली। उनको ये लालच दिया जाता है कि भाई वोट दे के जाना, या मीटिंग या कैंपेन में आना, तो जो है दारू पिलाएंगे तुमको शाम को बिठा के सब लोगों को। तो ये चीजें बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। पता हमें हमें उस टाइम पे बड़ी स्ट्रेंज लगती थी, बट क्योंकि ये शुरू से ये इन्वॉल्व है ये सारी प्रैक्टिसेस, तो इसलिए दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट ऐसा नहीं है, आज की डेट में इलेक्शन कमीशन इतना अवेयर है कि इस तरीके की जो भी लीडर्स या जो भी मिनिस्टर्स या जो भी कैंडिडेट्स इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उनका कैंडिडेचर ही कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, उनकी नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी कैंडिडेट जो अपने आप को नॉमिनेट कराता है फॉर इलेक्शंस, वो इस तरीके के रिस्क को नहीं उठाना चाहता है। उसे पता है कि बड़ी मुश्किल से नॉमिनेशन मिला है। पहले तो फिर भी चलो ऐसे ही मिल जाता होगा, बट अब के डेट में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा प्रोविजंस कर दिए हैं, इतनी सारी चीजें जो है डाल दी हैं कंडीशंस, कि अगर किसी भी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी कैंडिडेट उन सब चीजों को प्रैक्टिस करता हुआ मिलता है, तो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से उनका कैंडिडेचर कैंसिल। आप जो है फिर आपको मैम अब तो मैम जो भी मैम गुंडागर्दी करता है मैम उसकी गाड़ी पलटवा देते हैं। नहीं पलटवाते क्या है, वो उनको उनको खत्म, मतलब उनका वो खत्म हो जाता है, उनको फिर बैन कर दिया जाता है, डीबार कर दिया जाता है इलेक्शन से। जैसे आपने देखा होगा ना, स्पोर्ट्स में, गेम्स में कोई अगर बदतमीजी करता है या कुछ गलत मतलब करता है, तो उनको बैन कर दिया जाता है। यस तो मैम, बैन कर देते हैं। एग्जैक्टली फाइन भी उनसे कलेक्ट किया जाता है। तो ठीक मैम ऐसा ही, स्टीव स्मिथ मैम। हाँ। देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम ये चीज इलेक्शन कमीशन ने भी जो है ये प्रोविजन ला दिया है कि उनको डीबार कर देते हैं वो लोग। भाई एक बार आपके ऊपर ये ठप्पा लग गया कि आप गलत प्रैक्टिसेस में हैं, तो भाई कोई आपको क्यों, लीडर का मतलब क्या होता है, आप जिसको देख के इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले।
पर जब आप ही गलत काम कर रहे हो तो आप लोग आपसे क्या मोटिवेशन लेंगे, क्या इंस्पिरेशन लेंगे? मतलब बेईमान बने हैं, करप्ट बने, ये इंस्पिरेशन थोड़ी लेनी है लोगों को, ठीक है ना? तो ये इन प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली खत्म करवाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है? आप देखो जैसे पहले के टाइम में ऐसा मतलब कुछ जगहों पे क्या है, वो एक मूवी आई थी इमरान हाशमी वाली, मेक इन इंडिया, नहीं समथिंग लाइक दैट वाज, इट वाज अबाउट रॉन्ग Yes, ma'am. प्रैक्टिसेस। Make in India. मूवी का नाम And मुझे याद, cheat India. And चीप, cheat हाँ in कुछ cheat कुछ हाँ India. कुछ ऐसे ही, हाँ कुछ ऐसे ही था नाम शायद उसका। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था उसमें, चीट इंडिया। हाँ चीट इंडिया एग्जैक्टली, कि उसमें जो है मैम वाई चीट इंडिया। हाँ वाई चीट इंडिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई सॉल्वर्स को बिठाया जाता था एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए, लोग पकड़ नहीं पाते थे। तो अब इन सब चीजों पे मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या करा गया है, अलग अलग प्रोविजंस लाए गए, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई। अब पहले एडमिट कार्ड पे फोटोज कहाँ लगा करती थी, नहीं लगती थी, अब लगती है एडमिट कार्ड से फोटोग्राफ्स। अब जो है जो जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, उनको मैच किया जाता है। भाई जैसे कई बार कुछ केसेस में ऐसा पाया गया कि भाई जो कैंडिडेट ने अपने जो जब डिटेल्स भरी एट द टाइम ऑफ फिलिंग दी फॉर्म, वो डिटेल्स अलग थी, और जब वो उसने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के भरी वो अलग थी। तो इन चीजों को मैच करा गया, फिर पाया गया कि अरे ये तो कोई और ही था। फिर ये सीसीटीवी कैमरास का प्रोविजन आया, बहुत बहुत सारी चेंजेस आए हैं। मतलब हम लोग अपनी यस गलतियों मैम। से या जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हीं से तो उन्हीं को तो लेके हम रेक्टिफाई करते हैं चीजों को। तो जब ये प्रोविजंस थे, इन प्रोविजंस को देखा गया कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, ये ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत गलत चीज है। तो उनपे जो है उनमें मॉडिफिकेशंस की गई, उनमें चेंजेस लाए गए, और उन चेंजेस को जो है फिर थरली इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो आप आज की डेट में देखो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सॉल्वर्स पाए जाते हैं, या एग्जाम देने मतलब नाम किसी का है, बैठ के कोई और एग्जाम दे रहा है, शक्ल मैच नहीं कर रही है ना? तो बहुत बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं है। मतलब भाई जैसे समय के साथ साथ हर कोई बदलता है ना, और इम्प्रोवाइज करता है अपनी हर चीज को, ठीक है? जैसे ऑनलाइन सिस्टम वाज नेवर पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट अब बिकॉज ऑफ दिस पैराडेमिक इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अकॉर्डिंगली जो है इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं। स्कूल मैम कब से खुल रहा है मैम? स्कूल ये तो बेटा पता है, स्कूल वाले ही बताएंगे कब खुलेंगे।